Here we read in the three gospels. तो जैसे भी हमने 3 सुसमाचारों में पढ़ा, Matthew, Mark, Luke. मत्ती, मरकुस, लूका में, So in this same passage, in this same chapter, तो इसी चैप्टर में but in different in the heading. बात तो एक ही हो रही है लेकिन अलग-अलग तरह से लिखा हुआ है। So when we see that now in the beginning of Matthew chapter 8, जब मत्ती 8 में पढ़ते हैं, Jesus was doing so many things. यीशु मसीह बहुत सी चीजें कर रहे थे, Healing, चंगाई, miracles, चमत्कार, signs, विज्ञान, wonders, and he speak the multitude. और उन्होंने बहुत सारी भीड़ से बात करी। And then the Bible says that Jesus was preaching, and then he become tired. तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते-करते वो थक गए थे। And then in the evening, और शाम को Jesus told to the disciples, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, let us go to the another side. चलो दूसरी दिशा में चलते हैं। So now he was preaching the whole day, यीशु मसीह सुबह से प्रचार कर रहे थे, healing them, चंगाइयाँ दे रहे and even he left in the crowd. और भीड़ को छोड़-छाड़ के आगे बढ़ When we रहे थे। see the Matthew, जब मत्ती में देखते हैं, what is that Bible talk about? When you read in the book of Matthew chapter 1, chapter 8, verse 16, you will see that Jesus was in the evening. He was preaching the gospel, and he said that he cast out the demons, he healed the sick people. तो जैसे कि हम देखते हैं मत्ती 8 में यहाँ पर यीशु मसीह से बहुत सारे भीड़ को प्रचार करते हैं और उसके बाद उनको चंगाइयाँ देते हैं और उनकी मदद करते हैं। And then 18 also talk about Jesus saw the great multitude. और कैसे देखते हैं 18वें वचन में कि यीशु मसीह कैसे भीड़ को देखते हैं, उनको प्रचार करते हैं, And he command them to depart in another side. और उसके बाद वो भीड़ से कहते हैं दूसरी दिशा में जाने के लिए। So now Jesus in the human when we see this chapter, when you read and meditate, जब अगर आप इस अध्याय को पढ़ें और ध्यान लगाएं कि इसमें क्या लिखा है, Jesus is a human being. यीशु मसीह एक इंसान के रूप में थे, 100% 100% on this earth. इस धरती पर, 100% 100% God. परमेश्वर। So as a human being, एक इंसान होने के नाते he was doing so many things, वो बहुत सारी चीजें कर रहे थे, and he was tired. वो थक गए थे, So he want to go to the silent place. वो एक शांत जगह पे जाना चाह रहे थे। And today I was listening all this messages. People come in the Sea of Galilee. When you go to the Sea of Galilee, तो पास में कह रहे अगर आप गलील के समुद्र के पास जाएं, Galilee is a samudra, okay? And Galilee is a sea. वहाँ पे एक समुद्र है। Galilee, when you see, there is a lot of wind sounds is out there. So when we were there in Israel, we were in the Galilee. तो पास में जब मैं इज़राइल गई थी, वहाँ पे गलील के समुद्र में भी गई थी। So now there is a big ocean. और वहाँ बहुत बड़ा एक समुद्र है। When you click to the YouTube, okay, many people go there. The same topic they are preaching there. Pastor Prince Joseph and so many other Pastor Belen. I saw them preaching that you are standing in the midst of the Galilee and how Jesus is happening. And so many things preach about this तो message. पास में कह रहे आज भी क्या है, बहुत बड़े-बड़े जो प्रचारक हैं वो गलील के समुद्र पे जाते हैं और जैसे यीशु मसीह ने जिस टॉपिक पे प्रचार किया, वही टॉपिक पे वो भी खड़े होकर लोगों को वैसा ही प्रचार करते हैं। So Jesus was, and then now he was doing so many miracles and signs and wonder. And now, as a human being, he become tired. He want to go to the silent place. अब क्योंकि यीशु मसीह इंसान के रूप में थे, वो सुबह से प्रचार कर रहे थे, तो थक गए थे और एक एकांत जगह पे वो जाना चाह रहे थे। So when he was on the way, जब वो रास्ते में थे, then you see the Matthew chapter 18. तो मत्ती 18 में आता है, Matthew 8 chapter verse 18. मत्ती 8 के 18 में अगर हम देखते हैं, When he left the crowd, जब उन्होंने इस भीड़ को आगे चले, and he went to the another side, दूसरी दिशा में जाने की आज्ञा दी, and he want to cross over the another वो side. वहाँ जाना चाह रहे थे। Now he left the multitude, उन्होंने भीड़ को छोड़ दिया and he went out. और वो गए। And on the way, तब रास्ते में what did he do? तब क्या हुआ? There is one scribe, एक पढ़ा लिखा याजक था, वो आया, शास्त्री ने कहा, Lord, I want to follow you. एक शास्त्री ने कहा, यीशु मसीह मैं भी आपका चेला बनना चाहता हूँ। That is on the way to go to the Samudra, Galilee. उस समय यीशु मसीह समुद्र मतलब गलील के समुद्र की ओर जा रहे थे। Then Jesus responded, तो यीशु मसीह ने उस आदमी को क्या बोला? I have no good house. वो कह रहे ना तो मेरे पास बढ़िया घर है, I have no good food. कोई बढ़िया खाना भी नहीं है, तो Even my head to put. मेरे को सोने के लिए सर रखने की जगह I नहीं है। Bird has a net. आप ये देखो पक्षियों के तो घोंसले होते हैं, Frogs have a house. तो यहाँ पे लिखा है कि लोमड़ियों के भी भट्ट होते हैं। But I didn't have a house. ओके, यीशु मसीह कहते हैं So मेरे पास if you follow me, अगर तुम मेरे पीछे आना भी चाहते हो, it will be very difficult. तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल But होगा। Jesus knows that person's intention. पर यीशु मसीह जानते थे कि ये व्यक्ति क्यों मेरे पीछे आना चाहता है। So Jesus rejected that person. इसलिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को मना कर दिया, साफ-साफ तुम मेरे Jesus पीछे said, मत आओ। that person said, I want to follow you. वो इंसान बार-बार बोल रहा है, यीशु मसीह मुझे भी चेला बना दो। Just like verse 18 is that
19. So, chapter 8, verse 19, 18, you just see in the Bible. So here, this man saying that I want to become a Christian. तो 8 का 19 में क्या लिखा है? तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। मतलब वो कह रहा मुझे भी मसीही बना दो, मुझे भी चेला बना दो। So this man want to become a Christian. मतलब ये व्यक्ति मसीही बनना चाहता है। But God knows how, his heart. पर परमेश्वर जानते थे इसका दिल कैसा है, क्यों बोल रहा है? His mouth want to become follow God. वो कह तो रहा है मुंह से कि मुझे यीशु का चेला बनना है। But Jesus know his heart. पर यीशु मसीह उसका दिल जानता है। Jesus know that this person cannot able to face the problem that going to come. यीशु मसीह जानते थे कि ये व्यक्ति अगर मेरे पीछे आएगा जो दुनिया में सताव और परेशानी मुझे झेलना ही है, उसका सामना नहीं कर पाएगा। Jesus know that this person cannot remove his addiction. यीशु मसीह जानते थे कि ये तो अपनी आदतों को लतों को तो छोड़ नहीं रहा है। Jesus know that this person character cannot change. यीशु मसीह जानते थे कि ये अपने चरित्र को तो बदलता नहीं है। He know. यीशु मसीह जानते थे। Many people say that I'm a Christian. इसलिए कई लोग आज के कहते थे मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ। Or I want to follow Jesus. या मैं भी यीशु के चलना चाहता हूँ। But they want to follow with Jesus with the things of this world. तो वो यीशु मसीह के चलना तो चाहते हैं लेकिन दुनिया को भी साथ-साथ लेकर चलना चाहते हैं। They don't want to sacrifice their life. वो दुनिया को दुनियादारी की चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। Jesus, to follow Jesus, you need to sacrifice so much. अगर आपको यीशु के पीछे चलना है तो ये जरूरी है कि आपको बहुत सी चीजों का बलिदान करना पड़ेगा। So Jesus said, pick up your cross and follow me. इसलिए यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। You need to deny sin. आपको पाप को छोड़ना पड़ेगा। You need to deny so many character that you have. आपके चरित्र के अंदर जितनी भी बुरी चीजें आपको निकालना ही But पड़ेगा। this man also like that. अब ये व्यक्ति भी ऐसा ही था। He know that Jesus know that he will not stop drinking. यीशु मसीह को पता शराब तो छोड़ नहीं रहा, चेला कैसे बनेगा? Jesus know that this person all kinds of enjoyment in this world cannot deny. यीशु मसीह जानते थे मेरे पीछे चलना तो चाहता है लेकिन दुनिया के ऐश्वर्य आपको छोड़ना नहीं चाह रहा है। That's why Jesus मना कर दिया. No. You have no place to keep in your hand. इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ जीवन आराम का जीवन नहीं है तो उन्हें छोड़ दे मेरे पीछे Because मत आ। Jesus know the person heart. क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये आराम का जीवन ढूंढ रहा है। And then Jesus said, no, you didn't have, even though I didn't have put my head. इसलिए यीशु मसीह को साफ-साफ कह दिया मेरे पीछे अगर आना है तो सर रखने की जगह नहीं But है। very beautiful things. लेकिन एक सुंदर चीज, Another part, he moved again. अब यीशु He मसीह is आगे not बढ़ते हैं। that way. He is on the way. अब यीशु मसीह रास्ते में This है, thing not happening. ये चीज हुई। Just you imagine. आप सोचिए Jesus want to go to the another side. He यीशु left मसीह the crowd. यीशु मसीह ने भीड़ को छोड़ा और कहीं और So चला गया। now you want to go to church and you are on the way to Siddhinagar, you are in Burari or you are in Santanagar or you are in Jaruda or you are in Autaman, on the way. जैसे कि आप सोचे आप कहीं पर भी संतनगर रहते हो, निरंकारी रहते हो, बुराड़ी रहते हो, कहीं भी आप रहते हो, वहां से आप चर्च की ओर अगर आ रहे हैं, So same thing, Jesus also want to go to the ऐसे sea of यीशु मसीह Galilee. गलील के समुद्र की ओर जा रहे थे। He want to take rest. वो आराम So करना चाह on रहे the थे। way he reached, before he reaching, तो रास्ते में पहुंचने से पहले ही जहां उन्हें पहुंचना these था, things are happening. ये चीजें होती हैं। Jesus denied one person to follow. यीशु मसीह ने एक बंदे को तो मना कर दिया, भाई तू मेरे पीछे मत आ। Then another, he go a little bit ahead. अब यीशु मसीह थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Then Jesus called another person. अब एक व्यक्ति होता है उसको यीशु खुद बुलाते हैं, तू आजा मेरे पीछे, Follow me. मेरे पीछे आजा। Then this man said, और वो आदमी कहता है, Jesus, another person, I want to follow you. पहले व्यक्ति ने तो खुद बोला लेकिन दूसरे व्यक्ति को यीशु ने बोला। And Jesus then said, no, don't follow me. तो पहले व्यक्ति को तो यीशु ने कहा कि तुम मेरे पीछे मत आओ। Another person doesn't want to follow. अब दूसरा व्यक्ति क्या है, वो बीच के पीछे चलना नहीं चाहता। He यीशु don't want बोला to become a Christian. मुझे क्रिश्चियन बनना ही He नहीं है, don't want to come to church. वो चर्च आना ही He नहीं don't want चाहता, to read Bible. वो बाइबल पढ़ना ही He नहीं don't चाहता, want to accept Jesus. वो यीशु को अपनाना ही नहीं चाहता। But Jesus said, come with me. पर यीशु कहता तुम ना आ जाओ मेरे पीछे, तुम्हारी बात Follow me. मेरे पीछे आ जाओ। Then this man said, ये व्यक्ति कहता है no, no. मेरे को नहीं आना। If I want to follow me, I want to follow you. यीशु मसीह को बोलता है अच्छा मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा भी ना, I want to go home fast. पहले काम मुझे घर जाने दो, My father is dying. मेरे पापा मरने वाले I हैं, need to go and bury my तो तेरा father. मर जाए दफना दूं उसके सारा काम हम करके फिर आऊंगा। So that is the meaning. What is the meaning of that? तो यीशु मसीह हमें क्या बताना चाह रहे हैं? This man, ये व्यक्ति he want to do anything that he want to enjoy life fast. वो कह रहा है मैं दुनियादारी के सारे काम काज निपटा लूं, Now is I'm young. अभी मैं जवान हूँ, I want to do whatever I want जो to मुझे do. करना है सारे काम I कर need लूं। to drink. I need to finish my work. I need to do job. I need to do business. मैं पहले तो नौकरी कर लूं, व्यापार कर लूं, दुनियादारी के ऐश्वर्य के मजे ले लूं, After later on, I will follow उसके Jesus. बाद हाँ बूढ़ा होके तो अपने पीछे आ ही जाऊंगा। But Jesus said, no, no. यीशु मसीह बूढ़ा होके नहीं, अभी आ जा मेरे पीछे, Now you come with me. अभी मेरे पीछे आ जा। Your father is died. Let them dead will bury. अगर तुम्हारे बाप मर भी जाएंगे तो बाकी लोग दफना देंगे, तू तो आ जा That मेरे is the पीछे। 1920 say no. So if your father
I want to do, I will do finish first. Later on, I will तो follow. ये व्यक्ति कह रहा है कि यीशु मसीह आपके पीछे आऊंगा तो, लेकिन जब अपने काम वाम निपटा के फ्री होके फिर आऊंगा। Many people say, when I become old, I will preach. बहुत सारे लोग आज ये कहते हैं कि थोड़ा मैं बुढ़ा होने तो फिर प्रचार शुरू करूँ। Now is I need to earn money first. अभी तो जवान हूँ, नौकरी बिजनेस थोड़ी छोड़ Now के is I प्रचार need to करूँगा। enjoy the worldly things. अभी दुनियादारी के घूमना फिरना शॉपिंग करना भी तो इम्पोर्टेंट है। Nowadays, many people like the young people. आज बहुत सारे जवान लोग ऐसा ही कहते हैं। But Jesus said, no, now I want you. यीशु मसीह नहीं, तुम्हारी जवानी का समय ही मुझे चाहिए। So Jesus, in this man, Jesus is forcing. तो इस व्यक्ति को यीशु मसीह जबरदस्ती कर रहा है, मेरे पीछे आ, मेरे पीछे आ। Another man, God want to, that person is forcing him to follow. और पहला व्यक्ति तो यीशु से कह रहा था मुझे आने दो, यीशु कह रहा ना ना मता। See, these two characters. अब यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। One character, first character, Jesus know that this person cannot sacrifice. पहला व्यक्ति जब खुद यीशु के पीछे आना चाहता है, यीशु मना कर रहे हैं कि यीशु मसीह को पता है कि ये मेरे पीछे चलने के लिए बलिदान नहीं दे सकता। When the problem comes, जब प्रॉब्लम आएगी ना, he will धक्का मार के निकल देगा. तो God knows this person. तो यीशु मसीह जानते थे इस व्यक्ति को। But another person, पर दूसरा व्यक्ति, God knows that this person can do great things for the यीशु Lord. मसीह को पता था कि ये व्यक्ति अगर मेरे पीछे आया तो मेरे लिए बड़े-बड़े काम कर सकता है। But Satan doesn't want to take this man. पर शैतान इस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाह रहा। Then Satan said, no, don't follow now. Later on you follow. You go and do fasting walk. तो ये शैतान उसके द्वारा क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं अभी आपके पीछे नहीं आ सकता, जरा काम वाम निपटा लूं उसके बाद आता हूं ना। But God Jesus said, no, you must follow now. यीशु मसीह कहते काम वाम छोड़, लोग अपने आप देख लेंगे, तू मेरे पीछे So आ जा। this is on the way taking place. तो ये रास्ते में हो रहा था। So this is the person, another person, he want to enjoy first. तो इसका मतलब दूसरा व्यक्ति पहले अपने जीवन के आराम लेना चाहता है, उसके बाद आना चाहता है। So then many people, I want to do whatever I want. After that, I will take baptism. और इसलिए आज कई लोग ये बोलते हैं, अरे दुनिया के थोड़े काम वाम निपटा लूं, नौकरी कर लूं, बड़ा हो जाऊं, फिर बपतिस्मा ले लूंगा। Or sometimes I will, dealing first with my mother, father, my culture, my society. After that, I will follow तो Jesus. कई लोग कहते हैं नहीं ये त्योहार और मना लूं, ये रीति रिवाज और कर लूं, उसके बाद मैं प्रभु में आ जाऊंगा। There is a second person is like that. तो दूसरा व्यक्ति ऐसा ही था। But Jesus said, no, this is the day of salvation. पर यीशु मसीह ने नहीं, आज का दिन ही है, उद्धार का दिन, आज ही मेरे पीछे आ जा। Tomorrow you might not doesn't know. तू कल आना चाहता है, क्या पता तू कल ना आ पाए, So death will be always taking place. क्या पता तू पहले बाद में किसी और की मृत्यु हो जाए। Death will never end. मृत्यु कभी खत्म होगी ही नहीं। And follow now. अब मेरे पीछे आ जा। So, and then they are not on the way this thing happening. अब रास्ते में चीजें हो रही हैं। Then when we see the Luke, जब लूका में देखते हैं, Jesus was preaching. यीशु मसीह प्रचार करते हैं। Mother and Mary the mother and the brother and sister coming. अब यीशु मसीह के भाई बहन और यीशु मसीह की मम्मी यीशु मसीह से मिलने आते हैं। Then they have no time to talk Jesus. क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, यीशु मसीह हर समय प्रचार कर रहे हैं। Jesus was doing here and there, doing ministry. He never returned back home. अब यीशु मसीह सेविकाओं में जब जुड़ गए और प्रचार करना शुरू कर दिया, तो वो किसी से घर जाके मिलने So का समय now ही the नहीं। parent want the brother Jesus want to see and the mother want to see. अब यीशु मसीह की मम्मी, यीशु मसीह के भाई यीशु मसीह से मिलना चाह रहे थे। That is the Luke written. लूका में ऐसा लिखा है। Then Jesus was preaching there. अब यीशु मसीह प्रचार करते हैं, Then outside the people, तो बाहर के लोग, Guru, your mother and your brother want to meet you. अब यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, तो बाहर के लोग देखते हैं कि यीशु मसीह की मम्मी और उनके भाई आए हैं, वो बोलते हैं अरे गुरु देखो ना आपकी मम्मी भैया आए, जाओ ना उनसे मिलो। But Jesus was busy with preaching. उस समय यीशु मसीह प्रचार कर रहे होते हैं। And Jesus said यीशु क्या कहते to हैं that person, उस व्यक्ति से, listen, सुनो, here is my brother and sister who are listening to me. जो लोग इस समय मेरा प्रचार सुन रहे हैं और सुन के मानते हैं, वो है मेरी मम्मी और Who मेरा are भाई। disturbing outside. जो बाहर है, They are not my parents. वो मेरे माता पिता नहीं They है, are not listening to me. वो मेरी सुनते They नहीं are है, not doing my will. वो मेरी इच्छा पे चलते But नहीं you है। people are listening here. पर जो लोग मेरा प्रचार सुन रहे They are हैं, my brother. वो मेरे, They are my father. वो मेरे So पिता हैं। Jesus didn't important to my parent. Oh, this is my parent. This is my brother. This is my sister. तो यीशु मसीह ने ज्यादा महत्व अपनी मम्मी को, अपने भाई बहन को नहीं दिया कि नहीं मेरे शरीर का रिश्ता है ना, तो मैं यही मेरे हैं। For them, Jesus is busy for the harvesting. तो उस समय यीशु मसीह कटाई के लिए व्यस्त थे। Jesus didn't have time for the people who are not listening, तो यीशु मसीह के लिए उस लोगों के लिए समय नहीं था जो उनकी बात सुनते ही नहीं, who are not obeying Him, जो उनकी बात मानते ही who are not नहीं, listening with Him. जो उनकी आज्ञा को मानते ही नहीं। So their parents, brothers and sisters are like that. आप इसलिए उनके भाई बहन ऐसे ही थे। See, here is the lesson God is giving us. तो यहाँ पर एक लेसन जो परमेश्वर हमसे दे रहे हैं, Sometimes we are so much emphasize our family. कई बार क्या है, हम अपने परिवार में बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं। मेरा मम्मी के लिए, मेरा पापा के लिए, मेरा भाई के लिए, तो हम प्रभु का काम
काम को छोड़ के दिस थिंग आर मोर इम्पोर्टेंट है. तो ज्यादा महत्व प्रभु के काम को छोड़ के हम परिवार वालों को दे देते हैं। See, here also Jesus giving us a lesson. तो यहाँ पर परमेश्वर हमें एक लेसन दे रहे हैं। If God has called you, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है and your parent is the one who is stopping you, और आपके माता पिता ऐसे हैं जो आपको प्रभु के काम करने से रोकना or चाहते हैं stumbling block with you, और या एक रुकावट बने to हुए talk हैं about family, कि आप परिवार में to talk about money. पैसों के बारे में बात करते हैं। So this family, the parents come to talk about family issue. तो यहाँ पर हो सकता है यीशु मसीह के भाई बहन उनकी मम्मी उनसे परिवार के बारे में कुछ बात करने That आए is the हैं। thing I've done to Luke chapter 8. खोलते हैं लूका 8। Yes. What does Jesus respond to them? Because I want to know the root cause, that is why I just, what is... खोलते हैं लूका 8 का 19। You read there. लूका 8 का 19। यीशु की माता और भाई, पेज नंबर 9696। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए और भीड़ के कारण उससे भेंट नहीं कर पाए। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरा भाई बाहर खड़े हुए हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इनको उत्तर में कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते ही हैं। आमीन। See, that is the thing. So Jesus didn't important to their brother and sister. तो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने भाई बहन अपनी माता को इतना महत्व नहीं दिया। So God is here teaching us. तो परमेश्वर हमें यहाँ क्या सिखा रहे हैं? Sometimes God calling. कई बार परमेश्वर आपको बुलाएंगे। Sometimes you want to go to church. आप चर्च जाना चाहोगे। Sometimes you want to read Bible. आप बाइबल पढ़ना चाहोगे। Sometimes you want to pray. आप प्रार्थना करना चाहोगे। Sometimes you want to fasting. आप उपवास करना Then चाहोगे। your parent will say, तो मम्मी बोली, do that one. ये Do मत that करो, one. वो कर लो, वो कर लो, वो Don't कर go लो। to church. चर्च मत जाओ। Go and go market. मार्केट जाओ। Buying those things. सब्जियां खरीद के लाओ। See, sometimes we are disturbed like that. कई बार हमें ये चीजें डिस्टर्ब करती हैं। So now Jesus was sharing the gospel with the crowd. तो यहाँ पर यीशु मसीह भीड़ के साथ सुसमाचार बांट रहे हैं। Parents and brothers and sisters waiting outside to talk to तो them. उनकी मम्मी उनके भाई बाहर खड़े के वेट कर रहे हैं कब खत्म करें, हम भी बात करनी है। To disturb the Jesus reading the word of God. तो यीशु मसीह जैसे प्रभु में और बढ़ना चाह रहे थे, उसके लिए वो डिस्टर्बेंस बन रहे थे And to share the gospel to the people. और सुसमाचार बांट रहे थे। Sometimes you want to read the Bible. कई बार आप बाइबल पढ़ना चाहते हो, Your brother, your sister, आपकी भाई, आपकी बहन, your mother, your father, या आपकी मम्मी पापा, or your own wife, your own या आपके अपना husband. पति, आपकी अपनी बीवी, That will disturb you. वो डिस्टर्ब करते In हैं। that time, how you need to take the और उस decision. समय आपको क्या निर्णय लेना है? They are important or the word of God is तो परमेश्वर का वचन इम्पोर्टेंट है कि वो लोग इम्पोर्टेंट So है। you need to take तो decision. आपको उस समय सही निर्णय लेना So जरूरी here है। Jesus is the same thing teaching us. तो यहाँ पर यीशु मसीह हमें भी सेम चीज सिखा रहे He know हैं। the kingdom of God is first important. यीशु मसीह जानते थे कि परमेश्वर का राज्य सबसे The पहले word of महत्वपूर्ण God है। is first priority than Permission. mother and brother. परमेश्वर के वचन को सबसे पहले महत्व देना है, ना कि परिवार वालों को। So he was so angry to their parents. तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। No, this is my brother and sister who are listening to तो me. उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे माता पिता नहीं, लेकिन जो मेरी आज्ञा को सुनते हैं और मानते हैं वो ही मेरे They माता come पिता here हैं। to stop my preaching. कि मेरे प्रचार रोकने आए हैं, They come here to stop my healing. मेरी चंगाइयों को रोकने आए हैं, They come here to disturb us. यहाँ पे डिस्टर्ब करने आए हैं। So in our time, sometimes we want to read Bible, we want to pray, we want to fast. कई बार बाइबल पढ़ना चाहते हैं, उपवास All करना these चाहते will हैं, ये चीजें आएंगी। We need to stand like Jesus तो हमें भी यीशु की तरह खड़ा होना so चाहिए that you will overcome the Satan. ताकि आप शैतान पर पार पा पाओ। So now Jesus denying them not to talk. अब यीशु मसीह ने उनसे बात करने And की he मना कर continued दिया preaching. और प्रचार करते रहे। And this is the thing happening. और ये चीज यहाँ Then when you see the mark, अगर हम मरकुस में देखते हैं, Jesus was talking about parable. यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते हैं, But the same topic, but different way. पर यही टॉपिक है लेकिन अलग-अलग तरीके So से। now Jesus was doing these things and now he become tired in the evening. अब यीशु मसीह प्रचार करते-करते शाम को थक जाते हैं। So let us stand again to Matthew chapter 8. खोलते मत्ती 8। And then now Jesus talked to the disciple and then he just saying now he got up to the boat and disciple followed them. अब यीशु मसीह बोट की तरफ, नाव की तरफ जाते हैं और चेले उनके पीछे हो जाते But when हैं। you read in the Luke, Jesus said that let us cross over. पर अगर लूका में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं चलो पार करते हैं। So cross over. पार करना, Going back is a problem. वापस जाना मुश्किल है, But to cross over is a very important. लेकिन पार पाना बहुत जरूरी है। See, to cross over sin is very important. अगर वो पाप से पार पाना है बहुत जरूरी है। To cross over temptation is very important. परीक्षाओं से पार पाना बहुत महत्वपूर्ण So है। now Jesus want to take rest. तब यीशु मसीह सच में आराम करना चाहते
जा रहे थे And he said, let us go. और उन्होंने कहा चलो चले। He left the crowd उन्होंने भीड़ को छोड़ा and now he entered to the boat. और अब वो बोट पे गए। Now the 12 disciples are अब following. 12 चेले आए That Jesus was preaching and so tired. और यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, बहुत थके हुए थे। Entered to the boat वो बोट पे गए। and the Bible said Matthew didn't record, but when we read in the Mark, अगर हम मरकुस से पढ़ते हैं, and then he went to the room. वो कमरे में गए, Then he took the pillow उन्होंने तकिया लिया and then he slept. और सो गए। Jesus was sleeping. यीशु मसीह सो रहे थे। 12 disciples were in the boat. जो 12 चेले थे वो नाव में थे, But we don't know, the Bible didn't record that 1 hour, 2 hour, 3 hours. बाइबल ये नहीं बताती वो 1 घंटा सो रहे थे, 2 घंटे सो रहे थे, So 3 they want घंटे to सो रहे cross थे। over because Sea of Galilee is big. क्योंकि समुद्र जो गलील का समुद्र है बहुत बड़ा है। So those days there is no engine to drive. उस समय इंजन नहीं होते थे, People used to, they लोग वो चप्पू चलाते थे। so you know they are driving to cross over another side to another way. Jesus want to left this side and he want to go to the another तो side. यीशु मसीह को एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे जाना So they था, need to cross the Sea of Galilee. तो उस पूरे समुद्र को पार करना था। So they were driving in वो the, चप्पू चला रहे in थे the sea. नाव And में। Jesus was tired, cast out demon, healing people, and he was sleeping. तो यीशु मसीह थके हुए थे, बहुत सारी शैतानी शक्तियों को निकाला था, बहुत लोगों को चंगा किया था, वो सो रहे थे। Then Jesus was sleeping. Taking rest, no tension. Oh, थक गया, आराम से, peacefully sleeping. तो वो अच्छे से सो रहे थे, Peacefully. शांति से, Doesn't care. कोई फर्क नहीं पड़ता। He was sleeping nicely in the sea. अच्छे से सो रहे थे नाव The में। Bible says Jesus slept. बाइबल कहती है यीशु सो गए थे। Then when Jesus slept, जब यीशु सो the रहे थे, disciples were enjoying the samudra, the sound, the wind. तो चेले एकदम नाव का मजा ले रहे थे, पानी The का मजा Bible ले says रहे थे। it is evening time. बाइबल बताती है शाम का समय The Sea था। of Galilee is very beautiful. और से कह रही समुद्र जो गलील का बहुत Very सुंदर है, clean. बहुत साफ है। In the mountain. पहाड़ों में, The Sea of Galilee, when you go there, na, in the side mountain. गलील के समुद्र के आसपास सारे पहाड़ हैं, Low peak mountain, not high mountain. छोटे-छोटे पहाड़ हैं। So you will see that you just click it in the आप YouTube पे डाल के देख सकते हैं। very nice and clean, and the wave will come out like in the ocean the wave used to come like this. ये बहुत सुंदर है और उनको लहरें एक दूसरे के ऊपर अच्छे से आती हैं। So now Jesus was sleeping, enjoying the blessing and the peace of in the river. अब in the यीशु ocean. मसीह अच्छे शांति से सो रहे थे। Then अचानक से तूफान आया. So now they were enjoying. Then suddenly Bible said no, wave wind just like earthquake. तो बाइबल बताती है एकदम भूकंप के जैसा तूफान आया, The so much coming the heat. बहुत ज्यादा आया। Then the heat, the ship was just like this. तो एकदम जो नाव है ना वो टूटने पर हो गई, ऊपर नीचे So हो गई। now in the ship the water is entering. तब नाव के अंदर ही पानी आ And गया। now they cannot control the ship. अब वो नाव को संभाल नहीं पा So रही। now the Bible says that now the wave that coming is the just scary. तो जो लहरें थी बहुत ऊंची ऊंची और बहुत डरावनी हो गई थी। You will see this time in the news that Taiwan that earthquake comes, so many building collapsed in this week. तो पास्टर बता रही है इस हफ्ते भी बहुत बड़ा भूकंप आया था। And then also yesterday in Dubai there is a river. What is the rain come? The flood was everywhere. और दुबई में बारिश आई और वहाँ पे पूरा फ्लड आ गया। In the news, you see today morning also, yesterday also, in the Dubai, all the big building, the flood was coming, and then all the vehicle were covered. और इतनी ज्यादा बारिश आई कि सारे जो वाहन है वो भी कवर हो गए। Then you see in India very hot. और भारत में देखो इतनी गर्मी। See how the world is. आप देखो दुनिया कैसी चल Some रही है। place earthquake, कहीं पर तो भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पे धूप आ रही है। Israel, Iraq, Iran, now they're fighting. वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं People पे are dying with bomb blasts. कहीं पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं। Some place earthquake happening, some place virus happening, some place the hot happening. See how the God is, created the seasons, autumn. आप देखो परमेश्वर ने कैसे अलग-अलग मौसम बनाए हैं, सब जगह पे अलग-अलग मौसम इस समय हो रहे हैं। And so now when Jesus was sleeping because of tired and was taking rest peacefully. अब यीशु मसीह आराम से सो रहे थे। Then the cyclone come, the तब wind तूफान आया। hotly. How many people see the wind in your life? कितने लोगों ने बहुत जोर की हवा चलते देखी इतना है? wind आया आपको लाइफ में डर रहा था। वो लोग ना wind आते हैं तो गांव में तो क्या होता है? क्या है? ग्रास का हाट होते हैं ना? तो wind आते तो ग्रास को ऐसे उठाता है। तो कौन रहता है? सब लोग अंदर बेड में ना क्या सेफ के लिए अंदर आते हैं। So people used to hide under the तो bed लोग बेड के नीचे घुस जाते हैं। because when the storm will come, even the grass house used to collapse. क्योंकि तूफान जब आता है वो की हवा आती है जो ऊपर घास फूस रखी होती है सब उड़ के चली जाती है। Delhi the bridge out there, so you don't know. दिल्ली में तो इंडिया ने हमने देखा नहीं है। You go to the Gong. अगर आप गांव में When जाते the हैं cyclone
time, जब September, कटाई का समय October. होता है So दुर्गा पूजा बोलते हैं, दुर्गा पूजा टाइम पे बहुत साइक्लोन आते हैं. Then even the tin house in our दिन के घर भी होते हैं tin also निकलते हैं. आवाज भी देते हाँ, हैं। टिन्स भी करके टिन्स भी निकलते हैं सारे लोग ग्रास हाउस वाले होते हैं और सारे बिल्डिंग बड़ा बड़ा ट्री गिरते हैं. So that is how the wind is. इस तरह से जोर की हवा चलती है Nobody cannot stop in the wind. कोई भी खड़ा नहीं रह पाता Even the gari can fly with the wind. अगर बहुत तेज हवा आए तो गाड़ी भी उड़ सकती So है in the river happened like that. तो नदी में ऐसा ही होता है But Jesus was sleeping तो ऐसा यीशु मसीह सो रहे थे peacefully. एकदम शांति से Doesn't care about that thing. कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है Then what the disciples were पर afraid. चेले डरे हुए थे Then what to do now? अरे क्या करना They तूफान आ रहा were है so scared. वो डरे हुए थे They forgot God is with them. वो भूल गए परमेश्वर उनके साथ में है They forgot that God is with them. वो भूल गए परमेश्वर उनके साथ में But है Jesus was another people are scared and afraid. तो बाकी लोग तो डरे हुए थे They think that वो आज का दिन नहीं मरेगा आज का दिन नहीं मरेगा तो हम नहीं मरेगा जिंदगी में. तो सब तरफ ऐसा हो रहा है. यीशु मसीह तो आराम से सो रहा है. So you see the two character here. आप यहाँ पे दो चरित्र देखते हैं Jesus, यीशु मसीह he know उन्हें पता है these things are nothing. ये चीजें कुछ नहीं है This thing will not disturbing my ये sleep. चीजें भी उनको खराब नहीं He करती doesn't care. उन्हें फर्क भी नहीं पड़ा He know there is a wind. उन्हें पता है हवा चल रही है He know there is a storm. उन्हें पता तूफान आया He हुआ है know there is the water is entering. उन्हें पता है जहाज में पानी भी आने लग गया है Jesus was enjoying in the storm and sleeping पर फिर भी वो तूफान में सो रहे थे peacefully. शांति से But another group, और दूसरा ग्रुप I'm running. See another group, not hyper. Another party is hyper. Another person is no hyper. Aram se so. So here God is teaching us. तो यहाँ पे परमेश्वर क्या बता रहे हैं Jesus is teaching us in the midst of storm, peace. तो यीशु मसीह कह रहे हैं हमारे जीवन का कोई भी तूफान हो शांति हमारे अंदर होनी चाहिए Jesus know that these things are nothing. यीशु मसीह जानते थे कि ये चीजें कुछ भी नहीं And है this thing doesn't want to disturb his rest. और ये चीजें उनके जीवन को उनकी शांति को खराब नहीं करना चाहिए But another people when the wind come, पर दूसरा व्यक्ति जब देखते हैं कि तूफान आया हुआ they है were running here and there for solution. वो जहाज में भाग रहे क्या करें They try to stop the wind by the वो strength. कोशिश करते हैं किसी तरह से तूफान को रोक They पाए try to stop their strength by the power. वो अपने सामान से अपने को बचाना चाहते They try हैं to solve the problem. अपनी परेशानी को सॉल्व करना चाहते हैं अचानक से wind time में प्रभु कभी भूल गया. तो अचानक से ना वो सोचता हम मरेंगे. Then they were looking for God. और ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को Then now they come to Jesus. अब वो यीशु के पास आते हैं Guru, save Kato. You know, read that one. I love that one. Yes. तो हम पढ़ते में 23 में लिखा है Chapter 3:24. जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेहरे उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था तब चेलों ने पास आकर जगाया और कहा हे प्रभु हमें बचा हम नष्ट हुए जाते हैं See the verse, 25. Lord, save us. Pehले this between how many hours they come to Jesus, the Bible didn't record. पहले तो ये नहीं लिखा है कि कितने घंटों से वो यीशु के साथ It is not the wind up when they come to Jesus. No. ऐसा नहीं कि बोट पे बैठते ही तूफान आ गया और तभी के तभी यीशु के पास भी The चले गए tufan is not. It might be 30 minutes gone. हो सकता है आधे घंटे से They तूफान try to बढ़ता stop them. जा रहा हो They try to stop. They वो try कोशिश to. कर रहे थे रोकने की They face themselves. वो खुद कोशिश They कर रहे forgot God. वो सामना करने की भी They कोशिश कर forgot रहे that थे Jesus is वो among them. भूल गए यीशु मसीह भी हमारे साथ नाव में है Then they know that no, we cannot. उन्हें नहीं पता Now we are about to die. अब तो हम मरने ही वाले हैं Now they know that they will die. उन्हें पता है मर Then जाएंगे now they come to वो Jesus. यीशु के पास आते हैं Say that Guru send us. कि यीशु हमें बचा लो You know, in the Bible, बाइबल में the short prayer, सबसे छोटी प्रार्थना very short prayer. सबसे छोटी प्रार्थना These disciples were prayer. चेलों ने क्या प्रार्थना की Save us, O Lord. If not, they ask God. उन्होंने सिर्फ प्रभु से बोला हे प्रभु बचा लो आमीन That is the prayer that they made. ये प्रार्थना उन्होंने करी They didn't say, "Oh, Prabhu, help us. Please have mercy upon us. Forgive our sin." No, this is the उन्होंने लंबी prayer. लंबी प्रार्थना भजन संहिता 23, 27, 51 सब नहीं पढ़े उन्होंने But they, when the wind come, जैसे तूफान आया they say, "Lord, save us." उन्होंने प्रभु बचा लो Amen. Then Prabhu there. See, they still are there. No, the Bible says they pray to तो God. बाइबल में लिखा है कि उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी When the wind come, जब उन्होंने देखा तूफान the आया है, storm come, जब तूफान आया था they say, "Save us, Lord." उन्होंने प्रभु बचा लो
मेरे को बुला है। Bible said, call unto me, I will answer you. यीशु मसीह ने बोला है मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। So when they come, save us, and Jesus, क्या हुआ? मेरा बेटा दो, आपका विश्वास कहाँ है? मेरा को विश्वास नहीं है। So God wake up आराम से, they thought that they will die. उनको तो लगा था वो मरने ही वाले हैं। Another person, when is your faith? तो यीशु मसीह ने पहला प्रश्न क्या पूछा? When are you afraid? क्यों डरे हो? क्यों तुम्हारा I विश्वास am with है? you. मैं हूँ तो। I know. मुझे पता है तूफान आया The है। storm is here. है The तूफान। wind is here. हवा भी चल We रही are है। in the same boat. अरे हम से एक ही नाव में है, सेम सिचुएशन But में है। I know that my Father is with me. पर मुझे पता है मेरा पिता मुझे बचा लेगा। So my Father is with me. तो मेरा पिता मेरे I have साथ है। nothing to be afraid. डरने की बात He नहीं will है। protect me. वो बचाएगा He मुझे। will save my वो मेरे life. जीवन को That is बचाएगा। why I am sleeping peacefully इसीलिए तो मैं आराम से सो रहा हूँ in the midst of storm. परेशानी के बीच में। But another people, पर दूसरे लोग they forgot वो their भूल गए। faith. उनका विश्वास सब गायब हो गया। They forgot that they are when the sickness comes. जब बीमारी आती है, They about to die the sickness. जैसे कोई व्यक्ति बीमारी से मरने की कगार पे They है forgot they run to the hospital. और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर से मना कर दिया नहीं हो पापा। डॉक्टर से you cannot heal them. डॉक्टर कहता नहीं नहीं तुम ठीक नहीं होगे, घर जाओ, थोड़े दिन में मर ही जाओगे। And for that sake, doctor will say, okay, you just pay the money 1 lakh or 50,000. और वो छोटे मोटे चेकअप का भी डॉक्टर 50,000 रुपए ले लेगा, सारे स्कैन कर लेगा, फिर कहेगा तुम मरने ही वाले हो, चले जाओ पेट भर कर। So now that is the situation. ऐसी परिस्थिति होती है। So then later on, they know that this man cannot do it. अब ऐसे ही पता चलता है कि ये व्यक्ति नहीं कर सकता। Then they come to God. अब ऐसे वो व्यक्ति प्रभु Oh को बोलता है, Lord, save us, heal us, deliver us. अरे प्रभु में बचा लो, ठीक कर दो, छुटकारा दे दो। That is the disciple did that. चेलों ने ये तो किया। So now they come to God, save us. तो उन्होंने प्रभु के पास आके बोला प्रभु बचा लो। When I read, I say that this is a short prayer that never met in the history of their तो life. पास ने जो मैंने पढ़ा समझा कि ये सबसे छोटी प्रार्थना है जो किसी व्यक्ति कर सकता है अपने जीवन Because they are in need. क्योंकि वो जरा प्रभु बचा लो इतना ही। And they forgot other things too. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father, for providing seed. Samadru भूल गया. Because now they need that healing. Now they need to be saved. तो जब भी लोग प्रार्थना करते कहते पहले धन्यवाद दो, फिर प्रभु को परेशानी बताओ, फिर पश्चाताप भी करो, फिर मांग लो, समझ लो, मिल गया है। इतना कुछ उन्होंने किया ही नहीं, कहा प्रभु हेल्प कर दो, बस इतना ही बोल रहे They हैं। know that they're going to die with the seed. उन्हें पता है मरने वाला हूँ, अब इतना लंबा प्रार्थना करने का टाइम भी नहीं है। So they say, save us, Lord. बस वो बोलते प्रभु आओ बचाओ ना। So in our life, sometimes happen. कभी-कभी हमारी लाइफ में भी लंबी प्रार्थना का टाइम नहीं होता है। Please help us. But Accident as प्रभु. That moment also when you call upon God. अगर एक्सीडेंट आपको होने वाला है, अपने आधे सेकंड की प्रार्थना भी करें, परमेश्वर तब भी जवाब देते हैं। आप गरीबी था, भाई ना भीगा में छुपते हम ऐसे ओ प्रभु। So उस टाइम में भी हम ऐसे ना ओ प्रभु ऐसे तो हम लोग का लाइफ सेव होता है। So that prayer is you connecting, you know, because your mind is now, your mind, your thought about God, turn to God. क्योंकि जब बिल्कुल परेशानी घड़ी आती है ना, उस समय सिर्फ परमेश्वर नजर आता है और कुछ समझ में नहीं आता। And you forgot all the things. आप भूल जाते सब कुछ और क्या है। In that moment, और उस परिस्थिति God में listening. और प्रभु सुनता भी है। But sometimes, पर whole day you pray. कभी-कभी क्या होता है कि हमारे एक सेकंड की प्रार्थना का जवाब ऐसे आ जाता है और कभी-कभी पूरा दिन प्रार्थना कर लेते हैं। But because your mind is not with God. क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा सारे दुनिया का चीज सोचते हो प्रभु ब्ला ब्ला ये है वो है लेकिन आपका दिमाग तो खाना, आपका दिमाग तो पैसा, आपका दिमाग तो लड़की, आपका दिमाग तो जॉब, आपका दिमाग तो बिजनेस। ऐसे करते करते ना प्रभु नहीं सुनता, प्रभु का ऐसा क्या हो रहा है। But God wants us to talk with full तो परमेश्वर ये नहीं कहते कि लंबी प्रार्थना करो, प्रभु कहता है जो भी करो पूरे दिल से करो। These people wholeheartedly they come to God. अब जैसे ये लोग प्रभु के पूरे दिल से आए, Now they forgot about their family. वो भूल गए परिवार They का forgot है, about their children. वो भूल गए बच्चे They का forgot है, about their business. वो भूल गए अपने They व्यापार को, forgot about where they're going. वो भूल गए जाना कहाँ पर But है। now their mind is अब वो gone. समझ आ रहा है बस बचा So लो। now, Lord Jesus, you are the one who can save us. बस उनको ये समझ आ रहा है यीशु जो लेटा है ना ये कुछ कर You सकता are the one to deliver है, us. आप बचा सकते हो। So now fully surrendering to तो इसका God. मतलब इस समय उनका दिमाग पूरा पूरा And परमेश्वर पर God has saved us. और छोटी सी प्रार्थना की प्रभु बचाओ। 2 words. Only 2 words. सिर्फ 2 ही शब्द होते हैं God listening. और प्रभु ने सुना भी। 2 words only God listening. सिर्फ 2 शब्द की प्रार्थना भी प्रभु सुनता है। 1,000 words you speak. कई बार हम 1000 शब्द बोल तो देते हैं, But your mind is not connected with God. पर दिल प्रभु से जुड़ा नहीं है, सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, God is not listening. उसको प्रभु नहीं सुनता। But कोई भी हो, you may
may be giving one word, two word. Come with the heart. With तो हो सकता है कोई व्यक्ति हो जो बहुत छोटी प्रार्थना करता हो लेकिन जब पूरे दिल से करता है तो उसकी प्रार्थना का जवाब आता है that moment God will hear. और प्रभु उस समय ठीक कर देता So है। now these people, they know that they can't able to control. तो ऐसे ये लोग सोच रहे थे कि भाई अभी तूफान हमारे बस की And नहीं है these people now they know that they're going to और ये die. लोग जानते थे कि वो मरने ही वाले हैं। They forgot that God is with them, but suddenly they remember God. पहले तो भूल गए परमेश्वर हमारे साथ में लेकिन अब उन्हें याद आया अरे यही बंदा बचा सकता है इसी को आवाज लगाओ। Then they run to Jesus' room. और वे यीशु के पास भागते हैं Oh God, save us! अरे प्रभु बचाओ। And Jesus said, क्या हो रहा है? Then he come. और वो आते हैं But before he stopped the wind, लेकिन उससे पहले वो तूफान को शांत What do you करते हैं। do? क्या करते हैं? verse 21, yeah, before he stopped the wind, यहाँ पर लिखा है हमें प्रभु हमें बचा हम नष्ट हुए जाते हैं। 26 उसने उनसे कहा हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। see the wind is like this. आगे वो हवा को उड़ रही है एकदम से। In verse 26, English Bible says, 26 में लिखा है इंग्लिश में they come and say, Lord, save us. उन्होंने यीशु को बोला प्रभु बचाओ। Then verse 26, 26 में लिखा है he wake up and he said to them, when are you fearful? Oh, little faith. तो 26 में क्या लिखा? परमेश्वर ने पहले बोला हे अल्पविश्वासी तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Where are your fear? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? I am the Prince of Peace. मैं तो शांति का राजा हूँ। I am with you. मैं तुम्हारे साथ में When you हूँ। are afraid, क्यों डरे हुए हो? oh, you little faith. तुम छोटे विश्वास वाले। You see, I have so many miracles done. अभी तो देखा इतनी भीड़ पे चढ़ाई करके आया हूँ, कितने शैतानों को निकाल के आया हूँ, मरे हुए को जिंदा करके I आया do हूँ, so many miracles. कितने तो चमत्कार करके आया हूँ। His wind is nothing. अरे हवा तो कुछ नहीं है। Wind is there. Okay, no, there stop. अभी हवा रुकी नहीं थी। God was angry with the disciples. पहले यीशु ने गुस्सा कर लो उसके When बाद। you are afraid, अरे तुम डरे हुए क्यों थे? I promise you, मैंने कहा तो है don't be afraid. डरना मत। I am always with मैं you. हमेशा तुम्हारे साथ Do में हूँ। not be scared. किसी भी चीज से मत डरना। See, God always saying us, don't be afraid. परमेश्वर हम सबसे हर समय कहते हैं कि हमें डरना नहीं I है। am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। But we used to पर हम scare. डर जाते हैं। Oh, प्रभु कहाँ है? मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगा? मेरा बेटा बेटी कैसे ठीक हो जाएगा? मेरा बीमारी कैसे ठीक हो जाएगा? प्रभु बताते चिंता न कर, मैं आपका साथ हूँ। लेकिन हम डरते हैं। That's of God. These people are same thing like that. तो ये लोग भी हमारे जैसे ही थे। They were afraid. That's of God was so angry. इसलिए परमेश्वर गुस्सा आता है भाई डरे क्यों हो पहले तो। I say to you, मैंने कहा तो था I am with you in your मैं path. तुम्हारे साथ तुम्हारे नाम में ही तो लेटा हूँ। Why are you afraid? फिर क्यों डरे हुए हो? You are little faith. तुम छोटे विश्वास वाले। You don't know who I am. तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। I am the Messiah. मैं तो मसीहा हूँ। I am the protector. मैं तो सुरक्षा I देने am वाला the हूँ। healer. मैं चंगाई देने वाला हूँ। We know, we hear, we read Bible, हमें पता है हम बाइबल भी पढ़ते हैं हमें परमेश्वर के बारे में पता भी है but our confidence lost. लेकिन जब प्रॉब्लम आती है हमारा कॉन्फिडेंस होता ही नहीं। When the problem come, when the परेशानी come, when the sin, when the issue come, जब बीमारी परेशानी कोई भी इशू आता है you try to solve your problem. फिर हम उस प्रॉब्लम को प्रभु के पास You लेकर go नहीं to जाते। different pastors हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं and you will run, you come like a wind. Oh, मेरे को बताओ क्या हो रहा है, बताओ क्या है ना? गाँव में वो लोग प्रार्थना करते हैं ना, मेरे को बोलते हैं, पास्टर प्रे करके बताओ क्या हो रहा है, आपको प्रभु ने बताया तो बताओ, ऐसे बोलते हैं। मेरे गाँव में ऐसे बहुत होते हैं। कल भी क्या फोन आया था एक अंकल, आज ना और अभी भी प्रार्थना करके प्रभु ने क्या दिखाया, कल मेरे को कॉल करके बताओ। अभी तक नहीं बताया। तो see, that is the thing. No, we want to see. You didn't come to God, you didn't talk to God. We want somebody to behalf of us. तो हम परमेश्वर से बात नहीं करते पर अपना समय नहीं बिताते और हम चाहते कोई हमारे बिहाफ पे कुछ काम कर दे। हम पास्टर का पास मिरेकल का पास आके बताओ क्या हो रहा है। You know, these people also like that. तो ये लोग भी ऐसे They ही were थे, afraid. डरे हुए थे। And then we go to the future now. क्या हो रहा है मेरा फ्यूचर में बताओ। And गलत बताएंगे। आप तो सोच रहे हैं। तो आपका दिमाग घूमने घर आइए। कुछ नहीं हुआ। जिंदा बढ़ते रहते। So there is the things that these people are like that. तो ये लोग भी ऐसे ही थे। So Jesus was telling them. तो यीशु मसीह क्या बोल रहे थे? When are you fearful? कि क्यों डरे हुए हो? Oh, you little faith. तुम छोटे विश्वास वाले। Verse 26. 26 में I told you not to be afraid. मैंने कहा था मत डरना। I told you not to be feared. मैंने कहा था मत No डरना। matter what. चाहे कुछ भी हो The जाए, problem is. चाहे जो भी No प्रॉब्लम हो, matter what. चाहे कुछ भी The हो जाए, situation is. परिस्थिति कैसी भी हो, No matter what. चाहे कुछ भी You हो, are challenging us. तुम्हारी परीक्षा कैसी भी हो, See, God said, don't be afraid. प्रभु कहते
प्रॉब्लम Some are sickness. कोई बीमार है, Some are money, no money. किसी को पैसों का Some प्रॉब्लम are है, no job. किसी नौकरी Some नहीं are है, kaladadu. किसी काला जादू Some हो रहा are है, idol किसी worship. को मूर्ति पूजा कर रहा Some है, are family किसी issue. का फैमिली इशू है, Some are children issue. किसी को बच्चा So इशू है। just like a wind, इसका मतलब है तूफान की तरह हमारे that जीवन come and में attack you. आ रहा है और डरा You रहा are है, facing them. हम परेशानी का सामना कर रहे So हैं। God said, परमेश्वर कह रहा है, don't be afraid. डरो मत, I am with you. मैं तुम्हारे साथ में हूँ। In the midst of storm. इन परेशानियों के बीच में That is the God is telling to the disciple. तो परमेश्वर यहाँ पर चेलों से क्या कह रहा है? And who is the disciple? कौन है चेले? We are the वो disciple है चेले, who follow God. तो यीशु के पीछे चलते हैं। So today I just my topic is that in the midst of storm, तो पास्टर आज ये बताना चाहते हैं कि तूफान के बीच we में should be with God. हमें प्रभु के साथ होना है। We should not be panic. We should not be afraid. हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। So Jesus, before he stopped the wind, तो यीशु मसीह ने तूफान को रोकने से पहले he is scolding fast to the पहले disciples. बढ़िया तरीके से चेलों को डांटा। You people reading Bible? तुम बाइबल भी पढ़ते हो, I promise you, मेरे साथ तो I am always with you. मैं तुम्हें वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम्हें चंगाई दूंगा, छुटकारा दूंगा, तुम्हारी जरूरत को पूरी करूंगा, I am always with you. हमेशा तुम्हारे I साथ will रहूंगा, never leave you. मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। That is Jesus is calling to the disciples. यीशु मसीह यही चेलों को डांट रहे थे And we know it. और हमें पता है Reading Bible. कि बाइबल पढ़ना है। पता चिंता न कर, मैं आपका साथ हूँ, आपका चिंता सारे मेरा को दे दो। लेकिन हम मालूम है पढ़ते हैं लेकिन डरते हैं, हम मालूम है पढ़ते हैं लेकिन हम fear होता है, afraid होते हैं, और हम रोज डरते हैं। So that is the things that here the disciples also the same तो thing. यहाँ पे चेले भी ऐसे ही कर रहे थे। Then Jesus called the disciples. तो चेलों ने तो यीशु ने चेलों को डांटा, Why you are afraid? क्यों डरे हुए हो These challenges. ये सारी परेशानियों में? But for them is really about to die. और उनको तो सच में लग रहा था ना कि मरने वाले हैं। But Jesus know that they will not अरे die. यीशु को पता था मरोगे तो है नहीं। Jesus know that this wind will not kill them. यीशु मसीह को पता था कि ये तूफान को मार नहीं पाएगा। Jesus was testing their faith. यीशु मसीह उनके विश्वास की परीक्षा ले रहा था। Jesus know that your problem will not kill you. ऐसे ही आपके जीवन की परेशानी में यीशु मसीह को पता है परेशानी आपको मार नहीं Jesus पाएगी। know that your sickness will not kill यीशु you. मसीह जानते हैं कि बीमारी तो है लेकिन Jesus बीमारी में know आप that your मरोगे। financial problem will not destroy यीशु you. मसीह जानते हैं कि आपकी पैसे की गरीबी में आप मरोगे नहीं। Jesus know that the kalasadu will not kill you. यीशु मसीह जानते हैं कि काला जादू तो हो रहा है लेकिन काला जादू से मरोगे नहीं। Jesus know that society will not kill यीशु you. मसीह को पता है कि समाज आपको मार नहीं पाएगा, Jesus know that your relative will not कि kill आपके you. रिश्तेदार आपको मार नहीं पाएंगे। So Jesus said, why are you afraid this thing? तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसे क्यों डरे हुए हो? So Jesus was telling them, why are you afraid the wind? तो यीशु मसीह कह रहे हैं तूफान से क्यों डरे हुए हो? And Jesus said, you little faith. और यीशु मसीह इसलिए कह रहे हैं तुम अल्पविश्वासी You हो, were with me, तुम मेरे साथ थे but still you are afraid. फिर भी डरते हो। We are Christian. हम क्रिश्चियन भी हैं, We read Bible. बाइबल भी पढ़ते हैं, We see God miracle. प्रभु के चमत्कार भी देखते We हैं, see God healing. प्रभु की चंगाई We भी see देखते हैं, God answer our प्रभु prayer. प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, ये भी देखते हैं। पर फिर भी We are living fear. हम डरते भी हैं, We are living worry. हम चिंता में रहते भी We हैं, are living tension. हम टेंशन में रहते We भी are हैं, living so many things occupies in our mind. हमारे दिमाग में बहुत सी चीज चलती भी रहती है। So disciples also like तो that. चेले भी ऐसे ही थे। Amen. आमीन। Then Jesus said, do not be afraid. तो यीशु ने कहा मत डरो, And now he arose. और फिर वो खड़े हुए, Verse 26. He called the disciple. उन्होंने चेलों को डांट लगाई He arose, means he stand up. और फिर वो खड़े हुए। So maybe that time he was sitting in the bed and scolding. हो सकता है बैठ के पहले डांट रहे होंगे, Then now he's अब खड़े हुए and he stopped the wind. और उन्होंने हवा को रोक दिया। What he stopped? और क्या रोका? He rebuked the Satan. उन्होंने शैतान को डांट लगाई। The Bible says that he rebuked the wind. यहाँ पे लिखा उन्होंने आंधी पानी को भी डांटा। In the verse 26 say no. Then he arose and he rebuked the wind. यहाँ लिखा है तब उसने उठकर आंधी और पानी को क्या किया? डांटा। And there was great calm. और शांति हो गई। So the men were marvelous और वो लोग अचंभा करने लगे and saying to them, और क्या कहते हैं? oh, who can be this? अरे ऐसा कौन आ गया ये? Who even the wind are obeying? मतलब आंधी और पानी भी इसकी बातें मान लेते हैं। See, even the disciple. आज के चेले भी, Sometimes disciples just like you and I. चेले भी ना कई बार आपके और मेरी तरह थे, बड़े-बड़े विश्वास लेकर नहीं बैठे थे। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। Some are sleeping. Hallelujah. Praise the Lord. Sakana. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Zor say, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. So now they were just like disciples also. They see God miracle. तो चेले भी हमारे जैसे कभी-कभी चमत्कार भी देखते Just थे। like you and I. आपके और मेरी तरह हम
कभी-कभी ना गवाही देते, ओ प्रभु ने मेरे को ठीक कर दिया, मेरे को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। खत्म, प्रीचिंग आए, टेस्टिमनी खत्म, हम डर लगते हैं। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये प्रॉब्लम कहाँ से आया? ये चिंता कहाँ से आया? See, we are, we never have faith in God. तो हम पूरी तरीके से प्रभु में विश्वास लेकर नहीं बैठते। So now Jesus was the same thing, the disciples were like that, and now Jesus rebuked the wind. तो अब यीशु मसीह ने क्या किया? तूफान को डांट लगाई। See, sometimes कई बार you need to rebuke your problem. आपको अपनी प्रॉब्लम को डांटना जरूरी है। ऐसे प्रॉब्लम आया, कैरी करके आराम से बिठाना नहीं। प्रभु ने शैतान को ना विंड को stop it. प्रभु ने तूफान को डांट लगाई, चुप और निकल यहाँ से। So the Bible said rebuke means scolding them. तो डांटना मतलब डांटना। So God was rebuked the devil. God didn't say that, oh wind stop. God didn't say like that. प्रभु ने ऐसा नहीं बोला, ओ हवा तू शांत हो जा ना, ऐसा नहीं बोला। God said rebuke the wind. प्रभु ने डांट लगाई, शांत हो जा। Come out of this ocean. Get out of this ocean. God was rebuked them. प्रभु डांट लगा रहे थे। प्रभु rebuke का अफसोस करो। कैसे ना God is a loving God. अब देखो प्रभु तो प्यार करने वाले हैं, बट God is a patient God. प्रभु में धीरज भी है। God is मेरा बेटा. He loved the people. प्रभु ऐसे लोगों से प्रेम But करते when हैं। he angry, तो जब गुस्सा आता है, when he rebuke, जब डांटते हैं, कभी-कभी बच्चा को ना हम लोग का बच्चा को इतना प्यार करते हैं और हम सब के गुस्सा होता है निकाल है ना कभी-कभी प्यार देते हैं कभी-कभी इतना गुस्सा के डांटते हैं इतना गुस्सा आया इतना आपका करेक्टर दिखाता है वो टाइम तो बच्चा देख रहा हाँ सही में मम्मी आज तो ना अच्छा है डर होता है लेकिन आप ना ऐसे निकाल बच्चा लोग मतलब में मम्मी को हम लोग को फर्क नहीं होता लेकिन आप सच्चाई से डांटे ना बच्चा भी मालूम हो गया आपका फेस से आपका आवाज से तो बच्चा स्टॉप कर दे so now God was rebuked the Satan तो प्रभु ने भी शैतान को डांट लगाई। so now Satan know अब शैतान को भी पता है, know हवा भी जानती है सही में then अचानक से देखो और अचानक से शांत हो गए। the disciple was saying क्या हो रहा अचानक से गई हम कैसे इवन हवा भी प्रभु को ओबे करते हैं ये कौन इंसान है सिर्फ प्रभु का साथ था बस still they don't know who Jesus is इसका मतलब यीशु के साथ तो चल रहे लेकिन अभी क्या अचंभे में बैठे ऐसा कैसे हो गया बोलने से हवा कैसे रुक गई। see they don't know that they are not they don't know that Jesus is the control of the universe तो वो यीशु के साथ तो चल रहे लेकिन उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते he is the हैं। creator of the wind उन्होंने ब्रह्मांड को हवा को he is the creator of the ocean बनाया है सब he is कुछ the बनाया creator है of the universe ब्रह्मांड को बनाया है but the disciple doesn't know who Jesus is लेकिन चेले नहीं समझ पाए थे अभी तक कि यीशु आखिर है कौन। when Jesus stopped the wind जब यीशु ने हवा को रोक दिया disciple okay ये कौन इंसान है यार so wind का भी stop कर दिया ये कौन है ये हम लोग का लाइफ भी सेम आज ना प्रभु का आपका you know you are a Christian आपको भी पता है कि आप क्रिश्चियन हो you do so many things आपको पता है बहुत काम करते and हो God answer your prayer और आपको पता है जब प्रार्थना करते हो प्रभु but the आपका जवाब ही problem देता comes है like हवा लेकिन जब प्रॉब्लम आती है like a stone तूफान की तरह then forgot God तब पहले तो प्रभु को भूल you जाते try हैं to spend all your money पैसा खर्चने की कोशिश you करते try हैं to spend all the best doctors सारी चीजें जो डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करते and हैं those things cannot solve your problem और वो चीजें आपकी परेशानी Then को you ठीक come नहीं कर to पाती फिर आप प्रभु के पास आते then हो God solve your problem और प्रभु की परेशानी को हल देता है then you say तुम महान है अरे यार see you know that but still we really don't know who Jesus is तो आपको पता है कि यीशु मसीह कौन है लेकिन प्रॉब्लम में हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह आखिर है कौन। that's why Jesus really angry the disciples इसलिए यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आता है चेलों पर। you should know that who I am तुम्हें पता है मैं कौन हूँ I am the Messiah मैं मसीहा हूँ I am the creator of the मैं universe ब्रह्मांड को बनाने वाला हूँ I am the control of the universe मैं ब्रह्मांड को चलाने वाला the हूँ wind is in my hand हवा मेरे हाथ से रुकती है if I say go अगर मैंने कहते जा they will go तो हवा if जाएगी I say come अगर मैंने बोले हवा आ जा they will come तो हवा आएगी। so then the disciples were wondering तो चेले सोच रहे थे they were amazed वो अचंभित थे but here the lesson is there पर यहाँ पे सीखने की बात क्या है Jesus sleeping peacefully यीशु मसीह आराम से सो रहे थे because क्योंकि he know वो जानते थे that the Father will stop the wind कि पिता हवा को रोक ही देंगे मरने नहीं देंगे so he have nothing to be afraid तो उसमें डरने की कोई he बात was नहीं sleeping peacefully इसलिए वो अच्छे से सो रहे थे। so God is telling here इसलिए परमेश्वर ने क्या बता रहे हैं God is with you
प्रभु आपके साथ है ना, Nothing to be afraid. तो डरने की बात When नहीं the है। storm come in your life, जब परेशानी आपके जीवन when में the आती है, problem come in your जब life, मुश्किल आपके जीवन में आती है, don't care about those things. तो उन चीजों के बारे में सोचना नहीं है। You need to surrender to God. आपको प्रभु को समर्पित Move करना है, ahead in life. आगे बढ़ना है। Don't stand in that situation. उस परिस्थिति में खड़े नहीं रहना Don't है, be panicked. डरना नहीं है। Just like Jesus sleeping peacefully जब यीशु मसीह अच्छे सो रहे थे in the midst of storm. परेशानी के बीच में, So God is telling us, तो परमेश्वर हमें क्या कह रहे you हैं? may be facing storm, हो सकता है आपके जीवन में तूफान हो, problem, प्रॉब्लम हो, sickness, बीमारी हो, issue. इश्यूज हो, Don't be afraid. तो उनमें डरना The नहीं। Lord is with you. प्रभु आपके साथ And है God will remove away और your प्रभु problem. परेशानी को निकालेगा, And in the midst of और storm, उन परेशानी के बीच में be भी with them. प्रभु के साथ See, है। it is, I'm going to finish soon. It is not that, when God is with you, problem will not come. ऐसा नहीं है कि अगर प्रभु आपके साथ में है तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। See, disciples were with Jesus. चेले भी तो यीशु के साथ ही एक ही बोट में थे, प्रभु के साथ है, लेकिन तूफान आ रहा है। प्रॉब्लम तो आ रही है। प्रभु के साथ एक रूम में, एक शिप में, एक जहाज में, प्रभु एक घर पे, ठीक है ना? हम लोग का ये अभी हम है, प्रभु भी है। ऐसा नहीं है हम लोग का लाइफ में टेंशन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है हम लोग का लाइफ में बीमारी नहीं आएगा। हम सास में बीमारी नहीं आएंगे, हम सास में परसिक्यूशन नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, आएंगे, लेकिन उस चीज को प्रभु रोकेंगे। So we should not be afraid. तो हमें डरना नहीं। So God is with disciples. तो परमेश्वर तो चेलों के साथ थे, God is not outside of that. वो नाव के बाहर नहीं बैठे प्रभु थे, के साथ था, नाव के अंदर थे, लेकिन तूफान आया। लेकिन तूफान फिर भी तो आया। हम क्रिश्चियन हो, हम बाइबल में पढ़ते हो, हम फास्टिंग भी लेते हो, बीमारी भी आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, ये शैतान भी आएंगे, आते करेंगे, लेकिन हम डरना नहीं है किसी से। हम प्रभु को देना है और आराम से बिताना है, आराम से शांति से खाना है, पीना है, काम करना है। हम पैनिक नहीं है। So it doesn't mean that when the problem comes, God is not with you. ये ना सोचिए कि अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आ गई तो अरे मैं तो क्रिश्चियन तो हूँ, मतलब प्रभु मेरे साथ नहीं है। It doesn't mean that when the sickness comes, don't think that God is outside of you. ये ना सोचिए अगर बीमार हूँ तो अरे अब प्रभु मेरे घर के अंदर नहीं है। No, when the no money, don't think that God is outside of your house. ये ना सोचिए अगर घर में पैसा नहीं है मतलब प्रभु नहीं है। Oh, you have so many problems. आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है। Don't think that God doesn't know. ये ना सोचिए कि प्रॉब्लम परमेश्वर को प्रॉब्लम के बारे में पता Don't think नहीं that है। God is outside. ये ना सोचिए परमेश्वर बाहर है। God is with you. प्रभु आपके साथ है। God is with the disciples. प्रभु चेलों के साथ भी तो थे, But still the wind is पर here. हवा तो तब भी आई थी, But he come and rebuke the wind. पर यीशु मसीह ने उनकी उस हवा So को we शांत become a किया। Christian. तो हम मसीह तो बन We गए। go to church. हम चर्च भी जाते हैं, Problem will come. प्रॉब्लम तो आएगी, Challenges will come. मुश्किलें तो आएंगी, Persecution will come. सताया भी जाएगा, People will cast out. लोग आपको बाहर भी निकालेंगे, गालियां भी देंगे, People will mock. मारेंगे भी, मजाक भी उड़ाएंगे। But we should not be backslide. लेकिन इन चीजों की वजह से पीछे नहीं जाना है। We should not be, cry. हमें रोना भी नहीं है, And don't think that God is not with you. और ये भी ना सोचे कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, And ये don't सब think हो that रहा God है। is not loving you. ये ना सोचे प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता है, God is with you. प्रभु आपके साथ है। God see your प्रभु problem. आपकी प्रॉब्लम्स को देखता है, And God know which side He will और प्रभु rebuke. को पता है कि कहाँ पर आपको क्या हो रहा है। God will rebuke that. प्रभु उस प्रॉब्लम को डांटेगा, But God is sometimes testing your faith. पर कभी-कभी प्रभु देर से डांटता है, पहले हमारा विश्वास देखता है। So Jesus was, testing the faith of तो disciples. यीशु मसीह चेलों का विश्वास देख रहे थे, And He wake up और वो जाग गए। before He stopped the wind. हवा को रोकने से पहले When are you afraid? पहले बोला डांटता है, I am in your seat. मैं तुम्हारे साथ तो बैठा I हूँ, am in your boat. तुम्हारी बोट में I हूँ, am in your house. तुम्हारे घर में I हूँ, am in your bed. तुम्हारे बेड I में am हूँ, in your food. तुम्हारे खाने में I हूँ, am in your job. I am in your study. मैं तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारी हर जगह तुम्हारे I साथ am हूँ, in your marriage. मैं तुम्हारी शादी में भी हूँ। Why are you afraid? तो डरते क्यों हो? Satan bring problem. शैतान तो प्रॉब्लम लाएगा, I will solve the problem. पर मैं सॉल्व भी तो कर दूंगा। Don't be afraid. तो डरो मत। So in the midst of problem, तो हमारी प्रॉब्लम्स के बीच में we should be with God. हमें प्रभु के साथ God never रहना। leave you. प्रभु में कभी नहीं God छोड़ता, never forsake you. कभी नहीं त्यागता है। Don't think that God is not with you. ये ना सोचे कि प्रभु हमारे साथ में नहीं है In the problem, प्रॉब्लम में। Jesus is in the corner of your life sleeping. यीशु मसीह भी आपके जीवन के कोने में सो रहे होंगे इस समय, You need to wake up. आपको न जगाना है। How we need to wake up? और कैसे जगाना है? We need to call upon Him. हमें यीशु के नाम को पुकारना है, We need to faith in Him. विश्वास करना है, We need to trust in Him. भरोसा रखना है। In the midst of storm, प्रॉब्लम्स के बीच में be with God, प्रभु के साथ हो जाए, so that He will wake up ताकि वो जागे and He will rebuke the problem और वो प्रॉब्लम को डांटे, and He will solve your problem. अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करे। That is the message today. ये मैसेज है आज का।
So become a Christian, don't think that everything is fine. तो ये ना सोचे क्रिश्चियन बन गए, बैप्टिज्म ले लिया था, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो And गई follow Jesus, everything will go. और यीशु मसीह में चलने की वजह से सब कुछ मेरे जीवन में बढ़िया बढ़िया होता जाएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत हिंदू लोग होते हैं, चांस आएगा सुनवाई मिलेगा, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आया नहीं मिलता, वापस बाद में जो जाके तंग 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 शुरू करते हैं। That is not. It is not that God is not with you. ये नहीं है कि अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो प्रभु नहीं है। He is with you, प्रभु आपके साथ है, but He will destroy that problem. और वो प्रॉब्लम को नष्ट भी करेंगे। Amen. Amen. So this is the message that in the midst of storm, always be with God. तो प्रॉब्लम के बीच में परमेश्वर God के is साथ not रहे। far away from you. प्रभु आपकी प्रॉब्लम से दूर नहीं है, God is not with you. प्रभु को छोड़ेगा भी नहीं, God is with you. प्रभु के साथ So है। God was with them in that cyclone. तो ऐसे उस परेशानी में भी परमेश्वर उनके साथ में ही थे, God was with the disciples. चेलों के साथ में ही थे। And Satan didn't afraid. शैतान ने डरा नहीं, Satan come and knock them. शैतान को डराया नहीं, लेकिन सिर्फ Come and shaking their उनको heart, दिल को डराया, shaking their faith, उनके विश्वास को हिलाया, shaking their trust in God. उनके भरोसे को हिलाया, And they try to shake him. They are shaking. और वो डर रहे थे They अंदर try से, to lift God. वो चिंता कर रहे थे, Then they know that no, it cannot. We can't do anything. वो Then जानते थे कि वो कुछ नहीं कर सकते। they come to God. फिर यीशु के पास आए Please, bro, save us. और उठाया कि यीशु उठो, हमें बचाओ, Save us. हमें बचाओ। The short prayer. वो छोटी प्रार्थना, Only 2 words. सिर्फ 2 शब्दों की, God answered. प्रभु ने जवाब दिया, And God come and rebuke the wind. और गॉड ने, परमेश्वर ने उस तूफान को डांट दिया। Amen. आमीन। So let us walk with God. तो आइए हम प्रभु के साथ चलें, And in the pain of problems, और परेशानियों के दर्द में, in the pain of sickness, disease, और रोग में, बीमारियों में, परेशानियों में, चिंताओं में, never ever thought that God is not ये seeing ना you. सोचे कि प्रभु की प्रार्थना का जवाब नहीं, प्रार्थना Never नहीं ever सुन रहा। thought that God is not seeing your problem. ये ना सोचे कि परमेश्वर की परेशानी को देख नहीं रहा। God is with you, प्रभु आपके साथ है, but you need to come to Him. पर आपको प्रभु के पास आना है, We should not afraid that problem. और हमें उस परेशानी से डरना नहीं है, We should not afraid that storm. हमें उस तूफान से नहीं डरना है, And we should faith and completely live peacefully, and then you should not focus those things that are happening in your life. तो जो चीजें अपने जीवन में चल रही हैं, आपको उन चीजों को केंद्र नहीं बना के परमेश्वर को केंद्र बनाना है। As Zanak said, the disciple were focused in the wind. तो ऐसे ही चेलों ने तूफान की ओर ध्यान लगाया, Then they lost their focus and they come to Jesus. और तभी तो यीशु की ओर आए वो, And then when they lost their wind and they come and seeking God, and now Jesus come to him. और उसके बाद उन्होंने यीशु को उठाया, तो यीशु मसीह उनकी ओर को डांटा तूफान को। So in the past, in the few minutes, they are focused in the wind. तो इसका मतलब उन लोगों ने कुछ समय के तूफान पर ध्यान लगाया, And the wind are more coming. और तूफान और बढ़ रहा And था, now they forgot the wind. और भूल गए अब They तूफान come को, to Jesus. और वो यीशु Now they को focus in और Jesus. उनका ध्यान अब Lord, यीशु पे save है us. कि प्रभु बचाओ। So in that focus, तो उस फोकस में, in that moment, उस परेशानी में God come and save. प्रभु ने बचाया। So when you focus in God, तो जब प्रभु की ओर ध्यान लगाते हैं, all this storm, तो सारे तूफान, all this surrounding, सारी प्रॉब्लम्स, all your negative things, सारी नकारात्मक all चीजें, these things, सारी चिंताएं, it will flew away. ये निकल जाएंगी। But if you focus on those things, लेकिन अगर हम उन चीजों को एक केंद्र बना के रखेंगे, you will not solve the problem. तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, You worse into worse. तो ये खराब पे खराब होती जाएगी। But when you call upon God, लेकिन अगर आप परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे, He will save you. तो आपको बचाएंगे। So let us pray that today, तो आइए आज प्रार्थना करें, let us be in the storm. तो हम भी जो अपने जीवन के तूफानों में हैं, Let us sleep peacefully. शांत रहें, Because God is your क्योंकि friend. प्रभु आपकी लड़ाई करेगा, God is your strength. प्रभु आपका सामर्थ्य है, God will defend for you. प्रभु आपके लिए लड़ाई करेगा, God will fight for you. प्रभु आपके लिए खड़ा है। Don't try to fight your problem. अपनी प्रॉब्लम से खुद न लड़े, But you need to faith in पर God. प्रभु विश्वास करें, Then you will save him. तो प्रभु आपको But when बचाएगा। you try to fight पर yourself, अगर खुद लड़ने की कोशिश करेंगे, then you will problem after तो problem. प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, And you will be symptom after symptom. तो चिंता पे चिंता बढ़ती जाएगी। So this is the lesson that God is teaching us. तो यही परमेश्वर आज में सिखा रहा I है am with you. कि मैं तुम्हारे साथ But हूँ, still, पर फिर भी sickness will come. बीमारी आएगी, Problem will come. प्रॉब्लम आएगी, But your mind, पर तुम्हारा मन, heart, तुम्हारा should दिल, not be diverted. ध्यान भटकना नहीं चाहिए। That situation only for few minutes. वो परिस्थिति थोड़ी देर के लिए ही है, It will go. वो चली जाएगी। So that wind, that storm for few minutes. तो वो तूफान थोड़े ही समय के लिए है, It's not coming the whole day. वो पूरे दिन नहीं आएगा। So your problem is not for your whole life. तो आपकी परेशानी भी पूरे जीवन भर के लिए Your नहीं struggle है, is not for your whole आपका life. स्ट्रगल पूरा जीवन नहीं रहेगा। Today you might not have pocket in your money. आज हो सकता है कि आपकी जेब में पैसा ना हो, Don't think that your whole life will no money.
ये ना सोचे आज पैसा नहीं है तो कल भी नहीं, परसों भी नहीं, तरसों भी नहीं होगा। God will provide the next प्रभु day. आज नहीं देगा तो कल तो जरूर देगा। So we should not be afraid. तो हमें डरना नहीं है। Don't think that your sickness will death. ये ना सोचे मेरे को बीमारी आ गई तो मैं मर के ही छोड़ूंगी। Don't think that your children problem will be. ये ना सोचे forever. बच्चों की परेशानी भी हमेशा रहेगी। But you should think that this is just for a moment. लेकिन आपको सोचना है परेशानी सिर्फ थोड़े ही समय की है And these things should not bind in your और life. ये चीजें को बांधनी नहीं चाहिए And we should be focused in God. और प्रभु की ओर ध्यान लगाना। Amen. आमीन।